ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग तृतीय अध्याय 36 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय कृष्ण, तो क्यों पुरुष अनिच्छा होने से भी किसी के द्वारा जैसे कि बलपूर्वक बाध्य होकर पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ओ लॉर्ड कृष्ण, आई नो what is not to be done, what is not right to do, right to think, but who compels me to do that? Always. I don't want to commit any sins, but by whom I'm compelled to do, to think some sinful things. Word for word meaning. अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बताया, वार्ष्णेय, ओ कृष्ण, हे कृष्ण, अथ केन, किसके द्वारा, बाय होम, प्रयुक्त, चालित होकर, प्ररोचित होकर, बाध्य होकर, कंपेल्ड होकर, अयम, दिस, पुरुष, में, अनिच्छनपि, विदाउट any intention, I have no desire, अनिच्छा, बलात्, someone forces me, नियोजितः, नियुक्त करते हैं, इव, ये न, जानो, पापम कर्म, पाप कर्म, चरति, आचरण करते। I don't want to do any sinful work. I don't want to think any sinful thing which is not conducive for my spiritual progress. Yet someone forces me, compels me to do that. ये किसके द्वारा? ये, this is not only Arjun's question. This is the question of everyone else. जेटली जी, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। This is not the question of अर्जुन। धर्मशास्त्र की परंपरा के अनुसार अर्जुन ने सवाल उठाया। ये प्रश्न से निश्चित अर्जुन उनका जो प्रारंभिक मानसिक वैकल्य से उठकर थोड़ा सा स्थितिशील हुआ है और आत्मनिरीक्षण करके अपने अंदर में ऐसे गुण और शक्ति अनुभव कर रहे हैं कि धर्मशास्त्र मीन्स whenever you will come to contact with any holy person, whenever you will listen to any holy discourses,
you will start thinking about yourself. जब से आप सत्संग चालू कर देंगे, कोई महात्मा संत के पास बैठेंगे, उनके वाणी सुनेंगे, शास्त्र का वाणी, उनके वाणी मतलब शास्त्र का वाणी, देन एंड देयर आपके मन में विचार चालू हो जाएगा. नॉट ओनली दैट हु एम आई, बट ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग, इज इट वर्दी, ये करने का कोई जरूरत था. अर्जुन का भी ऐसा ही हुआ है. हिज माइंड स्टेट which was very in a traumatic condition, now he is little bit in a tranquil state, little bit in an equilibrium state, and he started self inquiry, to self unfoldment. And whenever you will start self inquiry, what about the good qualities inside you? It will start coming out. Or if it doesn't come, you can understand where is the hindrance. मन की जो सद्भावना सद्गुणावली है वो बाहर आना चालू कर देगा. अगर नहीं होगा तो आपके मन में परिष्कार हो जाएगा कि किस लिए मेरा सद्गुण बाहर नहीं आ रहा है, किस कारण से. अर्जुन का भी ऐसा ही हुआ. इस प्रश्न में सुस्पष्ट है, पंजाबी लोग बोलते हैं स्पष्ट, कि ये सबके मन की प्रश्न है. In this whole world, you will never find a person, never, ever, that who doesn't know a little bit of what is good and what is bad, what is to be done and what not to be done. Who doesn't have any idea about the virtue and sin. पाप पुण्य के विषय में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसे मनुष्य मिलना मुश्किल है. अपने अंतर की अंतस्थल में सब लोग जानते हैं कौन सा सत्कर्म है, कौन सा अपकर्म है. Each and everyone knows in his or her in inner self what is good, what is bad. Yet something compels me, forces me to do such thing, to think such thing, which is not conducive for my spiritual growth. ये मनुष्य का एक बहुत ही दुर्भाग्यमय विडंबना है. अपने आदर्श और अपने आचरण, इसके बीच में एक गैप तैयार हो जाता है. माई आइडियल एंड माई बिहेवियर, देयर इज ए गैप. And because of that gap, I can't see myself, or there is a problem in self inquiry. All the good qualities, all the godliness, it is inside us. हमारे सारे दैवी गुण हमारे हृदय में स्थित है. And whenever those godly nature, godliness, that pure nature, that positive vibes, whenever it gets expressed, we realize the highest.
We know that. Yet, some animal nature means mainly selfishness, mainly who are instinctual. What my wretched mind wants, I want to see that, I want to smell that, I want to taste that, I want to hear that, I want to touch that. और ये पाशविक प्रवृत्ति हमें श्रेय मार्ग से बहुत दूर रखते हैं और हमारे जो निम्न स्तरीय शारीरिक सुख में हमें मशगूल रखते हैं. Our lower tendencies always indulges us to get into the physical pleasure or mental pleasure, which is egocentric. Many times we do a lot of things which is against of my ideal. हमारे आदर्श के विरुद्ध में बहुत समय हम लोग बहुत कुछ करते हैं. That is why that was the question. इसीलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न कि हमारे मन के अंदर जो ये राक्षस की स्वरूप है, ये क्या है? कौन सी राक्षस हमारे सारे सद्गुणों की अपहरण करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन. मधुसूदन सरस्वती जी का एक टीका है सुबोधिनी. उन्होंने बोल रहा है तयोः न वशमागच्छेत् इति उक्तम तद एतद असख्य मन्वानोऽर्जुन उवाच अथेति. तयोर्न वशमागच्छेत् ये बोलकर मतलब ये असंभव है, इसीलिए अथ शब्द की प्रयोग किया. भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंश में जात है, इसलिए भगवान को वार्ष्ण्य ये नाम से पुकारा है. अनर्थ रूप पाप जो करने से कभी हमारा अच्छा नहीं होता. आपात दृष्टि में whenever we do any non-conducive thing, any non-righteous thing, it gives us pleasure for some time, but in a long run it never be good for us. किसके द्वारा प्रेरित होता है हमारे मन? ये पुरुष पाप चरण क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे विवेकवान व्यक्ति भी कभी कभी देखते हैं, दिखाई पड़ता है कि काम क्रोध की अंतर्गत है. विवेकशाली व्यक्ति भी पाप कर्म पर प्रवृत्त है. ये अर्जुन का सवाल था. भगवान शंकराचार्य जी का इनके ऊपर बहुत सुंदर भाष्य है. ये अथ केन प्रयुक्तोयम, ये केन शब्द अर्जुन का सवाल एकदम सामवेदीय जो तलवकार शाखा है उनका केन उपनिषद की पहला प्रश्न के समान है. एकदम एक. पहला मंत्र क्या था केन उपनिषद का? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः
प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क उ देव युनक्ति। मन किसके द्वारा परिचालित होकर अपने अपने विषय के प्रति धावित होता है? क्योंकि आवर सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, that they are the gross thing, but behind that some sense organs are there. These sense organs are nothing but the mind itself. Mind is divided into many parts. The first question of Kenopanishad: by whose order the mind goes through some object, goes to the object through the eyes, through the smell, through the nose, through the tongue, through the ears, through the skin, किसके द्वारा परिचालित हो? शरीर की अभ्यंतर में सर्वप्रधान किसके द्वारा नियोजित होकर मन अपने अपने विषय में गमन करते हैं? किसकी अभिप्राय से लोग ये सारे वाक्य उच्चारण करते? कौन कौन सी देवता है जो चक्षु, कर्ण, ये सब अपने अपने विषय में नियुक्त करते हैं? एक ही सवाल, एक ही टाइप का था श्री श्री चंडी में। आप अगर चंडी पढ़ेंगे तो पहला अध्याय की 44 नंबर 44 श्लोक में सूरत राजा की प्रश्न है मेधस ऋषि को, तत् केनै महाभाग षण्मोह ज्ञानिनोरपि। हे महामति, मुझे पता है, आई नो, ये स्त्री, पुत्र, विषय, पोता पोती, बेटा बेटी, सारे विषय दोष युक्त है। इन दिस फैमिली, इन माय बिलवेड फैमिली, father, mother, husband, wife, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, grandchildren, each and everything is not absolutely pure. A lot of faults are there. Because of their nature, I don't get 100% sukham. Yet, how I get deluded for my family members? ये सब कुछ जानते हुए भी हमारे मन मोहान्वित तो क्यों हो जाता है? भगवान शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं, अथ केन हेतु भूतेन प्रयुक्तः सन राज्ञा इव भृत्यः अयम पापम कर्म चरति आचरति। एक ही जो मैंने बताया वही उन्होंने बताया, किसके द्वारा प्रेरित होकर? जैसे राजा के द्वारा भृत्य परिचालित होता है, उनका हर वक्त भृत्य का इच्छा नहीं होता कि ये काम करूं वो काम करूं, लेकिन राजा की इच्छा है इसलिए वृत्त को करना ही पड़ता है। राज्ञा इव भृत्तः अयम पापम कर्म चरति आचरति।
श्रीभगवानुवाच Slok number 37. Don't read like a Bengali. What the Bengalis will read this sloka, you know. Kamo esho krodho esho rajo guno samudbhavaha. It's not like that. Esho means come, 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 come. It's not like that. काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. Wonderful sloka. This is very, very important sloka. Please mark it as important. Sri Bhagavan Uvacha रजोगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा एषः कामः एषः क्रोधः इह एनं वैरिणं विद्धि. भगवान ने क्या कहा? रजोगुण समुद्भव. All the things come from out of our rajogun. Our mind has one part which is very active, superbly active, that from that active part of the mind it is born. Mahashanaha, Mahapapma. Mahashanaha means dushpuraniya, which cannot be compensated. Mahapapma, बहुत ही उग्र, verily harsh. Eshaha, iha, this, kamaha, desire. Eshaha, this, krodhaha, anger. Iha, in this very world. Enam, vairinam. They are, and you should know, vidhi, that they are your actual enemy. Your desire prompted action, and your anger, they are your actual enemy. Clear? We will do some general discussion on it. ये काम, ये क्रोध, यही राक्षस है अंदर की. My desire and my anger are the demons inside the heart. Whenever we don't know about our own self, out of that ignorance, in our intellect, desire gets expressed out of our past impression. हमारे आत्मा की संबंध में अज्ञानता, अज्ञता, ये अज्ञता ही, that ignorance itself get expressed. ये अज्ञता ही बुद्धि में इच्छा के रूप में व्यक्त होता है. इसी श्लोक में काम और क्रोध को पृथक करके मत देखो. Desire and anger, they are not two different things. Whenever there will be anger inside you, you should know you have entertained some desire inside. So they are like the two sides of a one coin. According to the situation, our desire
transformed into anger. Whenever in our mind we desire to get some person, some situation, some objects, our mind gets agitated. मन की चांचल्य उत्पन्न होता है, विक्षेप हो जाता है, mind gets diverted. And that diverted mind is called desire. मन जब विक्षेप हो जाता है उसी को ही काम बोलते हैं. Whatever we are not having, whatever we are lacking, wherever we feel the sense of incompleteness, we want to get that. We want to get that object, we want to get that person, we want to get that situation, we want to get that pleasure. In the whole world, it's not possible that your all desires will be fulfilled. It's not possible. And whenever you get stuck to get your desired object, that same desire becomes your anger. जगत में हर व्यक्ति की हर चीज हर पल नहीं आता. हमें बहुत सारी इच्छा है, ये पाऊं, इसको देखूं, इसका आवाज सुनूं, इसको. लेकिन जब नहीं होता है तब वही कामना क्रोध में रूपांतरित होता था. और ये काम क्रोध राक्षस की तरह है. दोज डिजायर एंड एंगर आर लाइक द डीमंस. And they compels us to do some adjustment with the situation. And it compels me to forget my ideals, my character. हमारे आदर्श को भुला के हमें पाप कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं. And it compels me to do sinful activities. हमारे मन में हमारे लोअर टेंडेंसीज, whenever it will be very powerful, when our lower tendencies, which is verily body related, as much as it will be powerful, so much our life will be troublesome, full of sadness, sorrowful, depression, anxiety, blood pressure, diabetes. Whoever are suffering from all those diseases, you ask yourself, unnecessarily you have taken burden on yourself. अब लोग बोल सकते हैं कि स्वामी जी संसार में चिंता आ जाता है. आई नो दैट, बट हाउ? बिकॉज यू पे टू मच प्रायोरिटी टू योर बॉडी, माइंड, bodily demands, mental emotions, egocentric emotions, etc., etc., etc. That's why we are suffering. Because our desire covers our discriminating faculty. हमारे कामना हमारे विवेक को ढक देता है. And whenever the desire will be born, desire not alone. There is no single pointed desire. There are so many waves of thoughts. कामना की जन्म होते होते ही
बहुत सारे इच्छाओं की वृत्ति आ जाएगा, बहुत असंख्य वृत्ति, which is not conducive, which is against of humanity, which is against of your growth, positive evolution, and which is really sadful. ये बहुत ही दुखदाई है कि हमारे ये मनुष्यत्व विकास की परिपंथी है, and we come under this pravritti, and that is out of ignorance. That is ignorance. How I can restrain it? इसको दमन कैसे किया जाए? The only way to allow knowledge, correct knowledge inside us. Who will give you the knowledge? Only the Shastra and Guru with the grace of God. Guru is such a personality to whom we really invite that govern me, please. When we are irritated, that why we will go under the control of such fellow, such situation. We are free soul. In the same situation, we invite some person in our life whom we request with the folded hand, please govern me, please guide me. He is the Guru. Clear? भगवान उत्तर में काम एष क्रोध एष, भगवान ने पूछा अर्जुन, ये काम सिर्फ कामना नहीं, क्रोध भी तुम्हारा हुआ था। इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे, भगवत गीता में ही है। क्रोध काम से पृथक नहीं है। हमारे कामना कोई चीज से बाधा प्राप्त होने से ही क्रोध का उत्पन्न होता है। क्रोध कामज है, काम से पैदा होता है, इसीलिए काम और क्रोध एक ही है। और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। उपाय क्या है? सत्वगुण से रजोगुण का क्षय प्राप्त होता है। जब रजोगुण चला जाएगा तब कामना भी क्षय प्राप्त होगा। यही हमारे आचार्य परंपरा की उपदेश है हमारे प्रति। ये काम ही मोक्ष मार्ग में असली शत्रु है। जीवन की सारे सक्सेस के लिए ये शत्रु है। इसीलिए इसको विनाश करना चाहते हैं तो अपने रजोगुण को विनाश करो। महासन मतलब महत असन, मतलब जिनका भोजन कभी पूर्ण नहीं होता, ऑलवेज हंग्री, जिनका भूख कभी मिटता नहीं, वही दुष्पूर है। महत असन मतलब जिनका भोजन दुष्पूर, कभी तृप्त नहीं होता।
वो व्यक्ति महापापमा होता है, क्योंकि जब ही उनका भूख प्यास मिटने में बाधा होता है वो उग्र हो जाते हैं। यही अभिप्राय है। भगवान शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लूंगा। भगवान उवाच। भगवान वासुदेव विष्णु पुराण में षष्ठ स्कंध की पंचम अध्याय की 74 नंबर श्लोक में भगवान की संज्ञा दिया हुआ है। यू कैन प्लीज नोट इट। मैं कभी कभी पूछूंगा, हाँ, ये भगवान की संज्ञा मैंने क्या बताया था, कहां पर है? प्लीज नोट इट डाउन। विष्णु पुराण 6.5.74। संज्ञा क्या है? डेफिनिशन: ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म। ऐश्वर्य मतलब अनिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, यही है हमारे ऐश्वर्य। साधन करते करते ना ये सब आ जाता है। क्रिया योग में तो ये सिखाते हैं क्या? मुझे तो इतना पता नहीं, जितना पता है उतना ही बोल रहा हूं। ये अणिमा क्या होता है? ना साधन बल से व्यक्ति इतना सा छोटा हो सकता है। लघिमा क्या होता है? ना लघु हो जाता है। हमारे हनुमान जी के पास ये सिद्धा या सिद्धि था, इसीलिए लंका में प्रवेश करते करते वक्त उन्होंने एकदम छोटा हो गया था, है ना? और उनका व्याप्ति भी था, क्योंकि जब विशल्य करणी उन्होंने लाने गया तो अपने शरीर को पर्वत से भी बड़ा कर दिया। मतलब उनका ये सिद्धि था, व्याप्ति, सर्वव्यापी होना, प्रकाम्य, हर जगह पर स्वच्छंद अनुभव करते हैं। महिमा, महिमा तो पूरा जगत है। ईशित्व, सबके ऊपर प्रभुत्व, वो खुद से नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं तुम मेरा प्रभु बनो। और वशित्व, सारे लोग उनके वश में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया ऐश्वर्य, ठीक है ना? धर्म, आ, अच्छा, ये अष्ट सिद्धि का श्लोक क्या है? लोग तो पूछ सकते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ से बताए, ये आपके मन से तो नहीं? तो इसके ऊपर पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र है: अनिमा लघिमा व्याप्ति प्राकाम्य महिमा स्तव तथा ईशित्वञ्च वशित्वञ्च कामावसायित्वम् इति स्मृतम्।
यही है। ठीक है। तो काम काम्यवसायित्व मतलब मेरा जो इच्छा है वो करने का शक्ति मेरे पास है, ये है अष्ट सिद्धि। श्लोक में क्या बताया था? श्लोक में हम लोग बताया था ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य। ये धर्म क्या है? ना दानशीलता धर्म है, शांति धर्म है, वीर्य धर्म है, ध्यान धर्म है, प्रज्ञा धर्म है, उपाय धर्म है, प्रणिधान धर्म है, बल धर्म है, ज्ञान धर्म है। ये कहां पर है? ये त्रिपिटक में है। बौद्ध धर्म में ये धर्म की 10 लक्षण है। दानशीलता, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, प्रणिधान, बल, ज्ञान। ठीक है। आज इतना सा ही काफी है, मुझे लगता है। वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास।